آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت چھوٹی سی گیم ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی گیم ہے۔ آزاد کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے اب نہیں رہی، کیونکہ جس طرح سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں معاملہ 27ویں آئینی ترمیم کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے رانا تنویر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم میں تبدیلی کیسے ہوگی؟ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی تبدیلی ہو سکے گی، اور اس حوالے سے ملاقاتوں پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے بلاول بھٹو زرداری جا کے مل لیے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے حوالے سے پیپلز پارٹی اس کو اپنا بچہ سمجھتی ہے، وہ اس میں ترمیم کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہوگی، لیکن ایک آدھی اس میں ترمیم کر دی جائے گی اور پھر 27ویں آئینی ترمیم میں وہ سارا کچھ کر دیا جائے گا جو آج کی کچھ لوگوں کی ضرورت ہے، کچھ لوگوں کی خواہش ہے، اور کچھ لوگوں نے اس حوالے سے بہت کوئی تیاری کر رکھی ہے، اور اس حوالے سے اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ جو چیزیں 26ویں آئینی ترمیم میں رہ گئی تھی، کوئی سہو ہو گیا تھا، کوئی غلطی ہو گئی تھی یا جان بوجھ کے چھوڑ دیا گیا تھا، وہ بھی 27ویں آئینی ترمیم میں کور ہو جائیں گی۔ چلتے ہیں آزاد کشمیر کی طرف، وہاں پہ انوار الحق صاحب وزیر اعظم ہیں، ان کی طرف سے کل ہی کہا گیا کہ ٹھیک ہے اگر میری حکومت انہوں نے تبدیل کرنی ہے تو لائیں میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک۔ وہ بھی بڑے کانفیڈنٹ تھے، وہ بھی بڑے اعتماد نظر آ رہے تھے اس حوالے سے کہ ان کی حکومت نہیں جا رہی، جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے پوری کوشش کر کے اپنے ساتھ لوگوں کو ملانے کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ فریال طاہر اسی سندھ ہاؤس میں بیٹھی ہوئی ہیں جس میں کبھی آصف علی زرداری بیٹھے ہوئے تھے اور تحریک انصاف کے لوگوں کو وہاں پہ لایا جاتا تھا۔ اور پھر دیکھ لیجئے کہ جب تحریک انصاف کے لوگ وہاں پہ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کو نکالو، اور پھر عدالتیں بھی کتنی زیادہ برہم ہو گئی تھی، اور یہی عطا عمر بندیال صاحب کی طرف سے وہاں پہ ان کو طلب کیا گیا اور کیسی کیسی دھمکیاں لگائی گئیں۔ تو جو آج رجیم چینج ہوئی ہے، اس حوالے سے اگر بات کی جائے کہ ایک بندے کا نام لیا جائے جس کا گھناؤنا کردار تھا، کالا کردار تھا، تو اس میں سب سے پہلے، ویسے تو 5-6 لوگ آتے ہیں لیکن سب سے پہلے اس میں عمر عطا بندیال کا نام آئے گا، کیونکہ یہی وہ بندہ ہے جس کی طرف سے آدھی رات کو سپریم کورٹ کھولی گئی تھی اور پھر عدم اعتماد کی تحریک منظور ہو جیسے ہوئی وہ الگ ایشو ہے۔ ہم چلتے ہیں آزاد کشمیر کی طرف، وہاں پہ عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے پیپلز پارٹی بڑی سرگرم ہے، انہوں نے اپنے بندے پورے کر لیے ہیں۔ کل تک کہا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس 29 لوگ ہیں، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس 32 لوگ ہیں۔ 55 کا یہ ایوان ہے، وہاں پہ 27 لوگوں کی ضرورت ہے حکومت تبدیل کرنے کے لیے، اور مسلم لیگ نون بھی ان کے ساتھ مل گئی ہے۔ تو الیاس تنویر کو کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے ان کو نکالا گیا، عدالت کی طرف سے ان کو نکالا گیا، نااہل قرار دے دیا گیا۔ پھر نیازی صاحب وہاں پہ آ گئے تو ان کی حکومت بھی چلنے نہیں دی گئی، ان کی جگہ پر یہ انوار الحق صاحب آئے تھے، پیپلز پارٹی نے پوری سپورٹ کی تھی۔ اب پیپلز پارٹی اپنی حکومت ان کو نکال کے لانا چاہتی ہے، مسلم لیگ نون والے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو وہاں پہ تبدیلی کے لیے پیپلز پارٹی پوری کوششیں کر رہی ہے، لیکن وہ دوسرا بندہ انوار الحق وہ بڑے پورے اعتماد، وہ کہتے ہیں کہ لائیں میرے خلاف تحریک اعتماد، وہ میرا خیال ہے کہ خود جانے والے نہیں ہیں، تحریک عدم اعتماد کا وہ انتظار کر رہے ہیں اور تحریک عدم اعتماد بھی ان کے خلاف آ جائے گی۔ بہرحال ان کا ذرا کانفیڈنس دے کے وہ کہتے ہیں کہ لائیں ایک آدھ روز میں وہاں پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنا لے گی۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں اکٹھے ہیں، اور کہاں پہ اکٹھے ہیں؟ کل ہی وہاں پہ کس طرح سے احتجاج ہوا تھا، کس طرح سے لوگ نکل آئے تھے، ان کے مطالبات پھر اس حکومت کی طرف سے مان لیے گئے تھے، اور کل ہی پاکستان میں یوم کشمیر منایا گیا ہے۔ تو کیا پیغام دے رہے ہیں یہ دیکھیے، اشتہار بڑے بڑے اخبارات میں لگے ہوئے ہیں یوم کشمیر کے حوالے سے، تو کشمیریوں کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں اس طرح سے عدم اعتماد لانے سے؟ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی وزیر اعظم وہاں پہ اتنا زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ ان کی بات نہیں مانتا، جو رجیم چاہتی ہے وہی وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نہ جانے ان کے کیا منصوبے ہیں۔ اور جو مدت ہے حکومت کی اس کے خاتمے میں صرف 8 مہینے 9 مہینے رہ گئے ہیں، تو پیپلز پارٹی اپنا منہ کیوں سفید کروانا چاہتی ہے؟ تو 8-9 مہینے میں وہاں پہ کیا تبدیلیاں لے آئے گی، کیا پالیسی نہیں لے آئے گی؟ صرف اور صرف یہ
डालेगी कि वहाँ पे खाबे इनके निकल आएंगे, वहाँ पे फंड इनको मिल जाएंगे, इसके अलावा वहाँ पे क्या ये बड़ी तब्दीली लेके आएंगे। बहरहाल फिर आ जाते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहाँ पे 27वीं आईनी तरमीम होने जा रही है। राना तरमीम की तरफ से कहा गया है कि 18वीं आईनी तरमीम में बहुत से सुकम मौजूद हैं, उनको हल करने के लिए बेहतरीन के लिए 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है, लाने जा रहे हैं। कब लाते हैं, कल लाते हैं, परसों लाते हैं, बहरहाल नवंबर के महीने में ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जाके मिले हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने उनको क्या गेम डाली होगी, क्या समझाया होगा, क्या बताया होगा। वो कि ये कहा गया है कि कश्मीर में जिस तरह से अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है, होल एंड सोल पीपल्स पार्टी की वहाँ पे गिरफ्त होगी, मुस्लिम लीग नून इनके साथ होगी। आज भी इनके वज़रा हुकूमत का हिस्सा है बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से। यही मौलाना फजल रहमान से कहा गया है कि वहाँ पे हमारा साथ आप दें। हालांकि मौलाना फजल रहमान की वहाँ पे कितनी सीटें हैं, मौलाना फजल रहमान क्या साथ दे सकेंगे, लेकिन लगता यही है कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से रास्ता हमवार किया जा रहा है। और पीपल्स पार्टी कितनी ज़्यादा सख्त इस पर मौक़िफ़ रखती है कि 18वीं तरमीम हमने करवाई है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी किस तरह से तब्दीली के लिए आमादा हो जाएंगे, इसलिए आमादा हो जाएंगे कि इनको भी वज़ारत उज़्मा का ख्वाब दिखाया गया है। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी किसी भी हद तक चले जाएंगे। अगली खबर आपके सामने रखते हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से 65,000 मसाजिद के उलमा इकराम को और उनके आइमा को 10,000 रुपया फी कस देने का ऐलान किया गया है। तो ये कितने बदले होंगे? कई मसाजिद में तो एक ही मौलवी साहिबान होते हैं, वही मुअज्जिन होते हैं, वही खतीब होते हैं, वही बच्चों को सिपारा पढ़ाते हैं, वही सारा काम करते हैं। लेकिन कई मसाजिद ऐसी भी हैं जहाँ पे एक खतीब होता है, एक मुअज्जिन होता है, एक इमाम मस्जिद होता है और इसके अलावा कई वहाँ पे मुलाजिम दीगर भी होते हैं, 3-4 होते हैं सफाई वगैरह के लिए। तो एक मस्जिद में हो सकता है कि 5-5, 6-6 लोग भी हों। तो इस तरह से अंदाज़ा ज़रा कर लीजिए कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया है कि 65,000 मसाजिद के उलमा को, उनके आइमा को तनख्वाह दी जाएगी। 10,000 रुपये के लिए मुकर्रर किया गया है। तो 65,000 मसाजिद हैं, तो मुझे लगता है कि ये 3 लाख से ज़्यादा उलमा इकराम बन जाएंगे। बहरहाल इनको वजीफ़ा दिया जाता है 10,000, 12,000, 15,000, 20,000। तो बेहतर है ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे मुल्क में ऐसे लोगों को, ऐसे उलमा इकराम को इस तरह से अकोमोडेट करने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ तक ये बात है कि ये लोग खरीदे लिए जाएंगे तो ये लोग हुकूमत के लिए जो हुकूमत चाहेगी वो करेंगे, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। तो इनको अपना साथ देने पर आमादा करने के लिए हुकूमत जो चाहे वो करते रहें। तो हुकूमत अगर ऐसा करना चाहे तो कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कई उलमा इनके साथ आने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन ऐसे उलमा इकराम भी मौजूद हैं, आप उन पर जो भी उनको लालच दें, उन पर दबाव डालें, उन पर जो भी आप कर लें, वो हक और सच की बात करने से कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए ये सोचना गलत है कि हुकूमत इनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इस्तेमाल होने वाले बगैर पैसों के भी हो जाते हैं और जिन्होंने इस्तेमाल नहीं होना वो किसी सूरत भी इस्तेमाल नहीं होंगे। बाकी शहबाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर सऊदी अरब पहुंचे हुए और उनके साथ फील्ड मार्शल साहब भी हैं। फील्ड मार्शल साहब अंत तक अपने दौरे कर रहे हैं, वो मिस्र के दौरे पर गए और उसके साथ साथ उन्होंने उर्दन का भी दौरा किया। अब वो शहबाज शरीफ के साथ सऊदी अरब गए हैं। सऊदी अरब में शहबाज शरीफ गए तो पहले जैसा उनका इस्तकबाल नहीं हुआ कि इतने जहाज उनको लेने के लिए चढ़ गए, उनके पीछे चल पड़े, जहाज़ों से इस्तकबाल किया गया। जब नीचे आए तो कारपेट बिछाया गया। तो उनका इस्तकबाल करने के लिए क्या कुछ किया गया था, बड़े शादियाने बजाए गए थे। लेकिन अब शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे गए हैं तो सादगी से उनका इस्तकबाल हुआ है। उनको चाय पिलाई गई, उनको समोसे खिलाए गए या वहाँ की जो भी बेहतरीन चीज़ें होंगी वो उनके सामने पेश की गई। लेकिन पहले जैसा उनका वहाँ पे वालहाना वो इस्तकबाल जो हुआ था वो तो वालहाना को भी कहीं पीछे छोड़ गया था। लेकिन उस तरह से शहबाज शरीफ का इस्तकबाल नहीं हुआ क्योंकि उन दिनों सऊदी अरब की ज़रूरत थी। ये सऊदी अरब गए थे तो आज इनको सऊदी अरब की ज़रूरत है। इन्होंने जाते ही वहाँ पे कशकोल अपना फैला दिया। उस वक्त इन्होंने कोई इमदाद नहीं मांगी थी। अब इनकी तरफ से कहा गया कि हमें $1 अरब का उधार तेल दे दिया जाए। देखते हैं कि वो इनको तेल किस तरह से सऊदी हुक्मरान देते हैं। पिछले दौरे में हो सकता है कि
कि इब्राहिम अकाड़ के हवाले से इनके साथ कोई गुफ्तगू हुई हो तो उसमें मजीद शायद सऊदी हुक्मरानों की तरफ से कुछ करने की जरूरत ना महसूस की गई हो, इसलिए इनको उसी जगह पर रखा गया हो जिस जगह पर अमूमन वो कहते हैं कि आने वाली जगह पर मुर्गी आ गई। बहरहाल ये हमारे वजीर आज़म हैं, पहले इनका बड़ा इस्तकबाल किया गया था, वो यकीनी तौर पर इनका इस्तकबाल था तो पाकिस्तान का ही इस्तकबाल था, लेकिन आज वहाँ पे जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया गया है वो भी पाकिस्तान ही का इस्तकबाल है। तो अदील अकबर की खुदकुशी भी मुहिम्मा ये हल हो गया। पहले तो कहा जा रहा था कि ये कत्ल है या खुदकुशी है, लेकिन अब ये साबित हो गया है, पुलिस रिपोर्ट में ये कह दिया गया है जो इंक्वायरी हुई है, और ये इंक्वायरी किसी हद तक लगा भी खाती है, क्योंकि अब जो सबूत सामने आए हैं, जो अब जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक ये है कि ड्राइवर तो गाड़ी चला रहा था, जाहिर उसी ने गाड़ी चलानी थी, और उनके साथ वाली सीट पर गनमैन बैठा हुआ था जिसके पास गन थी, और एसपी साहब पिछली सीट पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि आपके पास गन है, तो उन्होंने गनमैन से कहा कि मुझे अपनी गन जरा दिखाइए, ये लोडेड है? उन्होंने कहा जी के लोडेड है। इन्होंने कहा मुझे जरा दिखाइए, उन्होंने गन इनके हवाले कर दी, लेकिन मैगजीन निकाल ली। उन्होंने कहा कि मैगजीन में क्या गोलियां हैं? उन्होंने कहा जी गोलियां हैं। उन्होंने कहा कि ये भी मुझे दे दीजिए, मैं जरा देखता हूं। तो वो नी पीछे बैठ के उन्होंने मैगजीन चढ़ाई या मैगजीन लगाई। इसके साथ साथ ड्राइवर गाड़ी चलाता चला, जाहिर है उसने गाड़ी चलानी थी, और गनमैन भी ड्राइवर की तरफ देख रहा था, ये सामने देख रहा था। तो उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि एसपी साहब पीछे बैठे गन का क्या कर, उनको यही था कि गन को देख रहे होंगे। तो फिर अचानक से गोली चली और एसपी साहब की वहां पे डेथ हो गई। तो इस तरह से पुलिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि उन्होंने खुदकुशी की है। तो इससे हतमी रिपोर्ट आ गई है पुलिस की कि उन्होंने वाकई खुदकुशी की थी। तो साहिर शमशाद मिर्जा साहब वो भी बांग्लादेश के दौरे पर गए हुए हैं, जॉइंट सर्विसेज के चीफ हैं, उन्होंने भी वहां पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मोहम्मद यूनुस साहब से मुलाकात की, और मोहम्मद यूनुस साहब ने इनको अपनी किताब भी पेश की है। वो कि वो सियासी हवाले से किताब नहीं है, वो बांग्लादेश की तरक्की के हवाले से किताब है। किताब का नाम ग्रेटर बांग्लादेश है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरह से बांग्लादेश ने तरक्की की और तरक्की की राहों पर किस तरह से वो चलता चला गया। तो कहा जाता है कि इनकी तरफ से ये किताब साहिर शमशाद मिर्जा साहब को पेश की गई है, और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी बेहतर बांग्लादेश के हो रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के और बांग्लादेश के ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है, भारत में उस तरह से इश्तियाल बढ़ता जा रहा है, और भारतीय मीडिया को मरोड़ लगे हुए हैं। वहां पे नेगेटिव खबरें पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से फैलाई जा रही हैं, बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन जिस तरह से पहले दूरियां हुआ करती थी, तो भारत की आज भी ये कोशिश है कि वो दूरियां ना सिर्फ ये कि बरकरार रहें बल्कि उनमें मजीद भी इजाफा हो जाए। लेकिन लगता यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मजीद करीब आते चले जाएंगे। दुआ तो यही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन किसी तरह से एक मर्तबा फिर इत्तेहाद हो जाए, कम अज कम कॉन्फेडरेशन हो जाए। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।